Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs that are related to 20th and 21st April. ठीक है जी, पंजाब PCS ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਟੂ ਟੇਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਿਦ ਯੋਰ ਕੋ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. Right, let's see firstly the contents, the topics that we are going to discuss today. So ਅੱਜ ਕਾਫੀ topics ਜਿਹੜੇ importance ਦੇ news ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ discuss ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ. ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ 'ਤੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਮੇਨਸ ਦੀ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਬੀ ਆਸਕਡ. ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਈ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਨੈਕਸਸਿਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਸਨਿੰਗ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Second news item is on Jassa Singh Ramgarhia, an important Sikh leader. What has been his contribution? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਇਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਂਡ ਮੇਨਸ, ਰਾਈਟ. then Ministry of External Affairs कुछ evacuation program कर रही है. so this topic is very important for our syllabus of GS2 which asks us to read Indian diaspora and the issues related to them. ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ. ਆਲ ਦਾ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਟਿਲ ਡੇਟ, ਰਾਈਟ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਂਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ. ਹੇਅਰ ਆਈ ਵਿਲ ਟੱਚ ਅਪੋਨ ਆਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ. ਦੈਨ ਦੀ ਫਿਫਥ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ population. ठीक है जी, population data आया है in which it is being reported that soon India will surpass China as the most populous country of the world, right. again GS1 geography demography या population geography ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਵੀ ਹੈ. from that perspective this is a very important article. The questions in society section can also be asked on this. ठीक है, तो demography बारे क्या changes आ रहे ने, क्या data है इस ते, everything we are going to discuss. again a very very important topic. ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ topics ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ relevant ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਨੇ. ਤਾਂ ਇਸ discussion ਦੇ notes please ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ. they will be very helpful to you in different kind of examinations that you sit for, especially पंजाब PCS एग्जामिनेशन, राइट. दैन देखो जी 60 साल स्टेट बनन हो गए है. नागालैंड जी स्टेट है उन्होंने बनन 60 साल हो गए ने. द फर्स्ट टाइम दिस स्टेट केम इन टू बींग एंड सिंस दैन इट हैज़ सीन दी सैटअप ऑफ फर्स्ट मैडिकल कॉलेज, राइट. इस न्यूज़ ते एनालिसिस करांगे आप. इस न्यूज़ च होर तो कुछ नहीं है बट ਇਹਦਾ क्या इंप्लीकेशन है, पॉजिटिव नैगेटिव बोथ ऑफ दैट वी विल सी, राइट. दैन अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ 'ਤੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ, ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਡਿਟੇਲਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ. ਆਈ ਵਿਲ show you the location and important areas to keep in mind, right. and finally a topic on heat wave, right. again heat wave ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. heat wave ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ heat waves ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ. अगेन GS1 जोग्राफी के पोर्शन च भी पूछा जा सकता है, GS4 इन्वायरमेंट के पोर्शन च पूछा जा सकता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग विच केस स्टडी इससे रिलेटेड आ सकती है. सो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इनू भी सारे ये वेज आउट वगैरह मैं तुहाडे नाल डिस्कस करने वाली हाँ, राइट. लैट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. ऑलरेडी बहुत वड्डे टॉपिक्स ने, अज थोड़ी डिस्कशन जी लंबी हो सकती है, राइट. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. I would also like to tell you to follow the test series also. As you might be aware by now that Siddhi Punjab has launched its test series to help Punjab PCS candidates. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ डाउट्स आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो बाद लेनी चाहिए है या सिलेबस कंप्लीट नहीं. सो आई वुड से कि ज़्यादा
प्लीज़ ट्राई टू जज योर सैल्फ। आर यू जस्ट गिविंग योर सैल्फ एक्सक्यूज़ कि तुसी टेस्ट सीरीज़ अवॉइड कर सको, इसलिए तुसी आपदे आप नूं एक्सक्यूज़ ही दे रहे हो कि सीरियसली कोई जेन्युइन कॉज है। प्लीज़ डोंट। एंड सैकेंडली ये भी कहना चाहूँगी कि नोटिफिकेशन ਲਈ वेट ना करते रहो, बिकॉज इट इज़ हाईली पॉसिबल कि नोटिफिकेशन जी है काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर आए एंड यू आर नॉट एबल टू दैन टेस्ट योर सैल्फ आंसरस किमें करने हैं, तो उदों तुहानूं समझ ना आए। सो डोंट बी अ फूल एंड टेक द टेस्ट सीरीज़, एटलीस्ट रिवाइज द सिलेबस बिफोर द नोटिफिकेशन ट्वाइस। दिस टेस्ट सीरीज़ विल हेल्प यू रिवाइज द entire portion twice before the examination, and you can also have a Q&A session with me with the अगर तुहानूं कोई भी डाउट होवे टेस्ट सीरीज़ के दौरान, तुसी टेस्ट तो बाद साडे नाल डिस्कशन भी कर सकते हो, आपदे डाउट्स पूछ सकते हो, इंप्रूवमेंट लई क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हो। एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल टू यू, सो मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द टेस्ट सीरीज़। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ड्रग माफिया पुलिस नैक्सस। नैक्सस का मतलब क्या हुंदा है? वर्ड्स ऑल्सो यू हैव टू लर्न, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग एंड स्पैलिंग्स भी पूछे जाते हैं सीसैट के पेपर विच एंड ऑल्सो इंग्लिश के पेपर विच, मेन्स विच 100 नंबर का जोड़ा पेपर हुंदा है। राइट, सो नैक्सस का क्या मतलब हुंदा है? इविल कनैक्शन तुसी कह सकते हो। तो इस न्यूज़ च क्या कहा जा रहा है कि ड्रग माफिया एक साइड ते पंजाब पुलिस या बॉर्डर पुलिस एक साइड ते, ये दोनों ही एलीमेंट्स मिल के ड्रग के मिनांस नूं पूरे पंजाब विच होर वधा रहे ने। कहने का मतलब क्या है? देखो, पुलिस का रोल क्या हुंदा है ड्रग के एरिया विच कि यह ड्रग बेचण वालियां नूं फड़न, ड्रग माफिया नूं ब्रेक करन, राइट, ड्रग्स की सप्लाई नूं किसी भी तरीके नाल खत्म करन। बट ओरिजिनल रियलिटी विच आपां क्या देख रहे हैं कि जिहड़े पुलिस वाले है यही ड्रग वालियां नाल मिल के, ड्रग टैररिस्ट या ड्रग सैलर्स नाल मिल के उन्हां तो पैसे खांदे ने ते उन्हां नूं ईजीली ड्रग्स बेचण लई अलाउ कर दिंदे हैं। दैट मीनस दे डू नॉट नैप दी ड्रग डीलर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर गेटिंग दी मनी पेड फॉर दैट। ठीक है, सो यही न्यूज़ ये कह रही है कि आप कहने रहने कि पंजाब विच इन्नी ड्रग्स होने का कारण क्या है? वन सच रीज़न इज़ दी ड्रग माफिया पुलिस नैक्सस। एक की वर्ड है, प्लीज़ यू हैव टू मैंशन दिस इन द आंसर। Drug mafia police nexus that is going on in the state which turns the rakshak themselves into bhakshak। मतलब पुलिस साडी रक्षा लई बने हैं from all the evils like the drug trade also, but they themselves join hands with the criminals and they themselves becomes the criminal or the bhakshaks। ठीक है, जी फैंसी लाइन्स तुसी यूज़ कर सकते हो स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग दे क्वेश्चंस विच या एसेज विच, right? So that is why I have written this. Both of these are very important lines, keep them with you. These are the keywords as we say जेडे तुसी आंसर्स वगैरह च यूज़ करने हैं, ऐसे विच यूज़ करने हैं to get more marks। ठीक है जी, so this nexus is a very important reason of the rising menace of drugs in Punjab। ठीक है, तो ये आपदे को लिख के रखो, ये तुसी ड्रग्स के टॉपिक्स दे नोट्स विच ऐड कर सकते हो। एज इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फॉर सम टाइम यू विल नो कि 10th जनवरी विच सारे डिस्कशन ड्रग्स के उत्ते डिटेल नाल आई हैव ऑलरेडी डन। आई विल अटैच द वीडियो हेयर, यू कैन चैक दैट वीडियो ऑल्सो, तो उत्तों नोट्स बना के यह रीजन भी उहदे विच ऐड कर लवो। राइट, सैकेंड टॉपिक, गुरमत समागम जस्सा सिंह रामगढ़िया लई ऑर्गेनाइज किया गया श्रोमणी अकाली दल द्वारा। राइट, तो इन्हां दी ये जिहड़े ने एक बहुत ही प्रोमीनेंट सिख हिस्टरी के लीडर रहे ने, तुसी पिक्चर विच देख सकते हो। इन्हां दी 300th बर्थ सैनेटरी मनाई गई है, जिहदी खुशी विच तुसी कह सकते हो ये गुरमत समागम किया गया, राइट, ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ साडे लई इन्हां बारे जानना बहुत ज़रूरी है। जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये तुसी याद रखना है, एक जस्सा सिंह रामगढ़िया ने, एक जस्सा सिंह आलूवालिया ने, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स ने, बट दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ ने। यू डू नॉट हैव टू कन्फ्यूज़ दीज टू पर्सनैलिटीज़। दोनों ही मिसल पीरियड नाल रिलेटेड ने एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट मिसलदार्स भी रह चुके ने। यू डू नॉट हैव टू कन्फ्यूज़ दिस, रिमेंबर दिस दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। राइट, सो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया, देखो पहलां भी आपां डिस्कशन च
गल की हुई है कि गुरु पीरीयड जिहड़ा है अपना शुरू होया, लास्ट गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपदे तो बाद किसी भी परसन नूं यह सूटेबल ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ नहीं चूज़ किया, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ही अगे सिखा का या ह्यूमैनिटी का गाइड जिहड़ा है डिकलेयर किया सी। तो उस तो बाद तुसी कह सकते हो कि सिख धर्म के लोगों को गाइड करने लई कोई एक डेडिकेटेड लीडर नहीं सी। ऑल्दो बंदा सिंह बहादुर जिहड़े सीगे वो उस टाइम ते एग्जिस्ट कर रहे सी टू प्रोवाइड सेफ गार्ड टू द सिख कम्यूनिटी, टू द पीपल ऑफ सिख रिलीजन, बट वो भी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए। मुगल रूल के अंडर उन्हों की भी डेथ हो गई सी, राइट, उन्होंने भी मार दिता गया सी, मार्टरडम दे दी गई सी। उस तो बाद वैन देर इज़ नो लीडर, दैट इज़ द टाइम वैन मिसल्स स्टार्टड कमिंग अप। मिसल्स मतलब पंजाब का एरिया जिहड़ा है डिफरेंट भागां विच तुसीं कह सकते हो डिवाइड किया गया, एंड वो सारे एरियाज़ विच एक डिफरेंट लीडर, एक डिफरेंट फ्लैग, एक डिफरेंट स्टेट की तरह इस्टैबलिश होना शुरू हो गया। दैट इज़ वॉट बिगैन द एज ऑफ मिसल्स, जिन्हों कई बार कहा जाता है राइटर्स बारे, इन पंजाब। ठीक है जी। सो मिसल्स दे देखो ये मिसल्स का ओरिजिन जिहड़ा है दल खालसा तो बाद होया सी। दल खालसा बेसिकली क्या सी, टू प्रोटैक्ट यही सिख रिलीजन फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ ऑफ मुगल्स। तो दल खालसा एक फाइटर फोर्ट जिहड़ी है वो ओरिजिनेट हुई सी। दल खालसा दो भागां विच डिवाइडेड सी। ये मैं सारी डिटेल्स ऑल्दो पहला भी कर चुकी है, इसीलिए मैं ज़्यादा डेप्थ च नहीं जा रही। दल खालसा के दो पार्ट सी, तरुणा दल एंड दूसरा तुसी मैनू दसोगे जिहड़े लोग ऑलरेडी ये कवर कर चुके टॉपिक मेरे नाल। वन वॉज तरुणा दल, वॉट वॉज द नेम ऑफ द सैकेंड दल। सो जिहड़ा तरुणा दल सी यह यंग लोगों का फाइटर दल हुंदा सी, एंड इस विच ही जस्सा सिंह रामगढ़िया ने काफ़ी रोल प्ले किया सी। ही एट वेरी यंग स्टेज, एट द वेरी यंग एज ही fought as the fighter under the दल तरुणा दल। ठीक है, सिक्स के इंटरस्ट टू सेफ गार्ड करने ये उन्ना प्रोमीनेंट सिक्स जो सी जिन्हों ने इस दल विच पार्टिसिपेशन दी सी। ठीक है जी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंडेड दी रामगढ़िया मिसल इटसेल्फ। दैट मीनस पंजाब दे बैग एरिया, बैग इज़ जस्ट अ निमोनिक, बैग का मतलब है बटाला, बटाला, अमृतसर एंड गुरदासपुर। ठीक है जी। बैग दे निमोनिक नाल इन्हां नूं याद कर सकते हो। रामगढ़िया मिसल जिहड़ी है तुहाडे याद हो जूगी हुण किहड़े एरिया च एस्टैबलिश्ड है, इन्हां दा लीडर फर्स्ट कौन सी, ये सब याद हो गया तुहानूं। मिसल्स ते बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक मिसल जिहड़ी अज आपां कवर करती। इस तरीके नाल हौली हौली असीं तुहाडा सारा पंजाब दा सिलेबस कवर करा देना बिफोर एग्जाम कम्स। दैट इज़ वाई दीज डिस्कशनस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दे आर हेल्पिंग यू प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड एनीथिंग दैन ऑल्सो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ आपदे दोस्तां नाल जिहड़े कि जगह जगह ते तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ शेयर आवर चैनल, राइट। सो बैग एरिया दैट इज़ बटाला, अमृतसर एंड गुरदासपुर दे एरिया नू, लैंड एरिया नू इकट्ठा करके इन्हां ने जस्सा सिंह रामगढ़िया जी ने रामगढ़िया मिसल की स्थापना की। दैट वॉज वन ऑफ हिज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। इन्हां ने फिर उस तो बाद इस एरिया उत्ते रूल किया, जिन्ने भी लोग सी उन्हां दी भलाई लई काम किया, राइट। एंड आपदे फाइनैंशियल खर्चा नू मैनेज करन लई सिख धर्म क्या करदा सी, दशवंड की प्रथा चलती सी कि हर सिख नूं, हर इंडिविजुअल नूं 1/10 ऑफ देयर इनकम जिहड़ा है स्टेट नूं देना पैंदा सी, सो दैट द स्टेट कैन प्रोवाइड दैम प्रोटैक्शन अगेंस्ट द मुगल्स, एंड ऑल्सो कि धर्म की स्प्रैड लई चंदा या तुसीं कह सकते हो फंड जिहड़ा है वो इकट्ठा किया जा सके, राइट। तो दसवंध की प्रथा काफ़ी चलती सी ते रामगढ़िया मिसल च भी ये सेम तुसीं कह सकते हो कि ट्रेडिशन जिहड़ा फॉलो किया जाता सी, राइट। उस तो बाद इन्हां ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट किला जिन्हों आपां कहने हैं किला राम राउनी, जिहदा नाम है राम राउनी, अमृतसर विच एस्टैबलिश किया। दिस इज़ वन ऑफ द रेयर पिक्चर ऑफ दैट किला दैट वॉज एस्टैबलिश्ड बाय जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है जी। ये लिखा भी होया है नाम, इफ़ यू कैन रीड इट इन द पिक्चर। राम राउनी नाम का एक किला जिहड़ा है इन्होंने एस्टैबलिश किया, तो इन्हां दी रूल का एक बहुत प्रोमीनेंट फीचर सी कि इन्हां कोल बहुत वड्डी कैवलरी सी। कैवलरी किहनूं कहंदे है, घुड़सवार जिहड़े हुंदे ने, जिहड़े घोड़े ते बैठ के फाइट करते हैं उन्होंने कैवलरी कहते हैं, ओवले सोल्जर्स के ग्रुप नूं कैवलरी कहते हैं। तो इन्हां कोल काफ़ी सिग्निफिकेंट, काफ़ी वड्डी कैवलरी सी। देखो
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 5th ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਟੇਡਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਟੇਡਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਗਵਾਉਣੀ ਪੜੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸ ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਫਾਈਟਰ ਫੋਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੈਵਲਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਮੁਗਲ ਫੋਰਸਿਸ। ठीक है, सिर्फ मुगल फोर्सेस ही नहीं, बाहरों इन्वेडर्स भी इस टाइम ते बहुत आन लग गए सी। अहमद शाह अब्दाली जिवें तुहानूं पता है, नादिर शाह, इस तरीके के बहुत सारे अफगानी इन्वेडर्स इंडिया विच आना शुरू कर दिते है। एंड पंजाब इज़ द गेटवे, ताहीं बठिंडा नूं तां तबरे हिंद भी कहा जाता है, द गेटवे टू हिंदुस्तान। ठीक है, तो पंजाब दे एरिया तो ही ये बहुत सारे लुटेरे इन्वेडर्स जिहड़े इंडिया विच आंदे सी, साडे लोकां दे लुੱਟ-ਪਾਟ करदे सी, साडे इंटरस्ट नूं डैमेज करदे सी। दैट इज़ वाई इन्हां ने एड्डी वड्डी कैवलरी दी स्थापना की, स्टैंडिंग आर्मी की स्थापना की, सो दैट ही कैन फाइट दी अफगानीज एज वैल एज दी मुगल रूलर्स विद इन इंडिया। ठीक है जी, दैट इज़ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना है। रामगढ़िया मिसल ते भी क्वेश्चन आ सकता है। फाउंडर हैगे ने जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है जी, बैग एरिया विच रामगढ़िया मिसल लोकेटेड है। राइट, राम रौनी नाम का एक किला इन्होंने एस्टैबलिश किया है। बहुत वड्डी कैवलरी भी सी अफगानीज ते मुगल्स के अत्याचार तो बचाने लई। दशवंड प्रथा दे थ्रू 1/10 इनकम कलैक्ट की जाती सी। 10 का मतलब 10 वंड। ठीक है जी, प्रोटैक्शन टैक्स भी इनू कहा जाता सी, या राखी भी कहा जाता सी। ठीक है, ये भी प्रोमिनेंट नाम है, याद रखना है, पूछा जा सकता है राखी क्या होंदा सी। प्रोटैक्शन टैक्स, राखी का मतलब ही है ना प्रोटैक्शन, दैट इज़ वाई आप रक्षा बंधन भी मनाने हैं। राखी का मतलब है प्रोटैक्शन, भाई भैन की राखी करेगा तो इत्थे जिहड़े है अपने रूलर्स जिहड़े है वो सिखा की राखी करेंगे। दैट इज़ वाई दे नीड सम फाइनैशियल असिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है जी, तो हुण जस्सा सिंह रामगढ़िया का तुसी स्टैचू जिहड़ा है अमृतसर विच देख सकते हो। दैट इज़ प्रेजेंट इवन टुडे। राइट, रिमेंबर दीज डिटेल्स, दीज विल हेल्प यू आंसर मैनी क्वेश्चंस। राइट, नेक्स्ट टॉपिक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एफर्ट टू रेस्क्यू इंडियंस। ठीक है जी, देखो इंडियंस जिहड़े है बहुत वड्डा डायस्पोरा है, तुसी कह सकते हो दुनिया विच सारे नालों ज़्यादा इंडियंस जिहड़े है वो डिफरेंट देशों विच रह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इंडियन डायस्पोरा द इंडियन सिटीजनस लिविंग अब्रॉड, दैट इज़ ह्यूज। तो अगर बाहरले देशों विच रहंदे होए कोई भी दुर्घटना हो जाए, then these Indian people they come in trouble too, and at that time Indian government comes forward to rescue these diaspora elements which are in trouble. Right, that is what is basically the evacuation program of India, and India has been performing evacuation programs since long. ठीक है जी, तो हुण करंटली भी यही न्यूज़ चल रही है, सूडान विच काफ़ी पोलिटिकल डिस्टर्बेंसिस चल रही हैं, तो उत्थे इंडिया के 5000 तो ज़्यादा लोग जिहड़े रह रहे ने। तो कंटिन्यूसली इंडियन गवर्नमेंट नूं अपील्स कीतियां जा रही हैं कि ये 5000 लोगों को वापस लियाया जा सके, एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली इन टॉक्स विद Sudanese government, and it is also collaborating with other 4 countries, prominent countries like US, UK, Saudi Arabia ते UAE, ताकि इंडियंस नूं सूडान विचों इवैकुएट किया जा सके। ठीक है जी, ये तो प्रेजेंट प्रोग्राम जिहड़ा चल रहा है वो है, बट इन दी पास्ट ऑल्सो देर आर नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इवैकुएशन इनिशिएटिव्स दैट इंडिया हैज़ अंडरटेकन। सब तो इंपॉर्टेंट ते सब तो लेटेस्ट वाला है ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन विच वॉर छिड़ गई सी। यू नो दैट यूक्रेन विच काफ़ी इंडियंस रहिंदे सी, स्पैशली इंडियन मैडिकल स्टूडेंट्स रह रहे सी, ते उन्होंने बचाने लई इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, एंड इंडियन स्टूडेंट्स नू यूक्रेन विचों इवैकुएट किया गया। दिस इज़ एन अनदर एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखो, ऑपरेशन देव शक्ति, अफगानिस्तान विच तालिबान का टेक ओवर होया सी। वी नो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस वेरी रिसेंटली, एंड अगेन इंडियंस इत्थे फस गए सी,
इंडियन दी अंबैसी भी उत्थे ही सी, इंडिया दे अंबैसी दे लोग उत्थे ही सी, सब नूं बहुत बड़ा थ्रैट सी बिकॉज वी डिड नॉट नो कि तालिबान किस रूप विच वापस आएगा। तो उस टाइम ते इंडियन अंबैसी दे लोग, इंडियन सिटीजनस जिहड़े उत्थे रह रहे सी, उन्हां सब नूं इवैकुएट किया गया अंडर ऑपरेशन देव शक्ति। राइट। फोर्थ एग्जाम्पल कोविड, वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। कोविड दे वेले सारे किते लॉकडाउन हो गया सी, बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट, इंडियन वर्कर्स जिन्हां कोल परमानेंट लिविंग या जॉब्स नहीं सी, वो बहुत सारी कंट्रीज़ विच फस गए सी बिकॉज सारे किते लॉकडाउन सी, फ्लाइट्स अनऑपरेशनल सी। तो उस टाइम ते वंदे भारत मिशन, इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट टू लॉन्च टू इवैकुएट इंडियंस। ठीक है जी। इस तरीके नाल बहुत सारे प्रोग्राम्स इंडिया ने अज तक लॉन्च किए ने, ये सब याद करने ज़रूरी नहीं है, बट आ लेटेस्ट जिहड़े मैंने 4 डिस्कस किए है प्लीज़ याद रखो। फर्स्ट द लेटेस्ट वन जिहड़ा सूडान च हो रहा है, सैकेंड ऑपरेशन गंगा फॉर यूक्रेन ते अफगानिस्तान कोविड नाल रिलेटेड। राइट, यू कैन रीड द रेस्ट ऑल्सो टू नो दी बैकग्राउंड हिस्टरी। एक होर जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल विच, बिकॉज हेयर वी हेल्पड नेपाली पीपल ऑल्सो एंड इंडियंस ऑल्सो। नेपाल विच बहुत ही भयंकर 2015 विच अर्थक्वेक आया सी, तो बहुत सारे लोग जिहड़े है मलबे वगैरह के अंदर दब गए सी। तो इंडिया ने ऑपरेशन मैत्री के अंडर रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन चलाया एंड अगर इंडियंस उत्थे फसे सी तो उन्होंने या होर कंट्रीज़ के टूरिस्ट भी अगर फसे सी, उन्होंने सबनों उत्थों इवैकुएट किया। ऑल्दो ये जिहड़ा सी नेपाल की असिस्टेंस का प्रोग्राम सी, इवैकुएशन प्रोग्राम नहीं सी, बट दोनों कट्ठे ही इस विच किए गए। नेपाल नूं असिस्टेंस भी दी गई तो फॉरनर्स नूं स्पैशली इंडियंस नूं इवैकुएट भी किया गया। राइट। एंड उस तो बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवैकुएशन प्रोग्राम जिहड़ा इंडिया ने कंडक्ट किया वॉज इन येमन। येमन च तुहानूं पता है कि इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई सी, शिया सुन्नी हाउदी कन्फ्लिक्ट ये सब बहुत चल रहा है उत्थे। उस तो भी इंडियंस नूं निकालण लई ऑपरेशन राहत 2015 विच लॉन्च किया गया सी। Right, these are some of the important evacuation programs that you should know. Rest you can read if you are interested. वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इंडियन डायस्पोरा का कोई भी क्वेश्चन आवे उस च तुसी ये प्रोग्राम्स दी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, दैट हाउ इंडिया इज़ वर्किंग टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डायस्पोरा। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जिहड़ा है फर्स्ट 4 वालियां चों किसी ते भी आ सकता है। दे कैन मैंशन अ नेम, ऑपरेशन देव शक्ति वॉज टेकन टू इवैकुएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। 4 कंट्रीज़ दी ऑप्शन दे देंगे एंड यू हैव टू पिक अप द आंसर। तो इस तरीके नाल ये 4 जिहड़े फर्स्ट 4 ऑपरेशनस काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। राइट। सो देखो इस तरीके नाल वड्डे वड्डे प्लेन्स विच ग्लोब मास्टर सी समथिंग देयर इज़ एयरक्राफ्ट दैट इज़ यूज टू इवैकुएट इंडियंस, जिहदी कैपेसिटी काफ़ी हाई है। इंडियंस देखो काफ़ी हैवी नंबर विच बाहर रहिंदे ने, तो सब तो ज़्यादा इंपैक्ट भी इंडियंस ते हुंदा है जद भी बाहर कोई इंस्टेबिलिटी हुंदी है। राइट। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी अपनी यूनियन कैबिनेट है, इट हैज़ अप्रूव्ड द नैशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, ऑलरेडी ये वर्कस च तां सी, तां हुण अगैन यूनियन कैबिनेट ने ये फंडिंग भी एलोकेट कर दी है। वॉट इज़ दी प्लान नाउ? 2023 तो शुरू होकर 2030 तक नैशनल क्वांटम मिशन ते डेडिकेटेडली वर्क करेगी इंडिया दी साइंटिफिक टीम्स। 6000 करोड़ रुपया फाइनैंशियल असिस्टेंस एलोकेशन भी इस स्कीम लिए एलोकेट कर दी गई है। इस स्कीम का, इस मिशन का परपस क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टैक्नोलॉजी इन क्वांटम साइंस। इंडिया विच क्वांटम टैक्नोलॉजी नूं वधावा मिले उस ते रिसर्च एंड डेवलपमेंट ते पैसा लगाया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी के अंडर ये सारा मिशन जिहड़ा है ऑपरेट करेगा। राइट। इंडिया जिहड़ा है हुण बाकी 6 नेशनस नूं ज्वाइन कर रहा है जिथे क्वांटम टैक्नोलॉजी के उत्ते ऑलरेडी रिसर्च वर्क चल रहा है। ओनली 6 अदर कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन क्वांटम टैक्नोलॉजी एंड इंडिया इज़ नाउ दी 7th नेशन। राइट, ये याद रखना है। ये 6 अदर नेशंस क्या है? ऑब्वियसली USA द लार्जेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड, देन चाइना द likely large emerging power of the world, and then other countries like Canada, France, Austria and Finland। ठीक है, देखो इत्थे ये पॉइंट सोचन वाला है, रशिया जिहड़ी कि एक वड्डी पावर है दैट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, UK अगेन अ वेरी बिग पावर एंड जर्मनी, दीज आर मिसिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, इस तरीके नाल याद रखो, ये तो परमानेंट 5 द मैंबर्स भी ने। राइट, दे आर नॉट वर्किंग ऑन क्वांटम टैक्नोलॉजी एज सच एज नाउ, दीज आर द 7 कंट्रीज़ दैट आर वर्किंग फॉर नाउ। ठीक है जी, इन थोड़ा जिहा इन्हां नूं ध्यान च रखण दी कोशिश करो।
राइट दैट इज़ ऑल अबाउट द मिशन। तो क्वांटम टैक्नोलॉजी के बेसिक्स करना बहुत ज़रूरी है। साइंस विच डायरैक्ट क्वेश्चन इट इज़ हाईली लाइकली कि तुहानू क्वांटम टैक्नोलॉजी ते पुछ लैन। सो आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक्स, ये डिटेल्स जिहड़ियां तुसीं आपदे इंटरनैट सोर्सिस तो कवर कर सकते हो। सो वॉट इज़ क्वांटम टैक्नोलॉजी? बेसिकली द टैक्नोलॉजी दैट वर्क्स ऑन क्वांटम मकैनिक्स। क्वांटम मकैनिक्स क्या हुंदा है? द वर्क दैट इज़ डन ऑन सब एटॉमिक लैवल्स। तुसीं छोटे हुंदे पढ़िया होगा दैट एटम हुंदा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स किहड़े हुंदे ने? सब एटॉमिक मीनस इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या उस तो भी अगे वाला लैवल काइंड ऑफ, ठीक है। जदों आपां होर दी होर विच जाके उन्हां ते रिसर्च करते हैं, उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ नूं यूटिलाइज़ करन दी कोशिश करते हैं, दैट इज़ वॉट इज़ सब एटॉमिक रिसर्च क्वांटम मकैनिक्स दैट कैन बी गोइंग ऑन, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल जिहड़ी साइंस जिहड़ी है प्रोग्रैस कर रही है। पहला सानू एटम दी प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता सीगियां, हुण जदों आपां ने एटम नूं प्रॉपरली जान लिया है, उन्होंने यूज़ कर लिया है, हुण आपां एटम दे समझ लो होर अंदर जान की कोशिश कर रहे हैं तो उत्थों दे पार्टिकल्स नूं यूज़ करन दी कोशिश कर रहे हैं टू मेक अवर लाइफ्स ईजीयर टू टेक द साइंस फॉरवर्ड, ठीक है। क्वांटम टैक्नोलॉजी ते हुण इन्ना एम्फेसिस क्यों है? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फास्टर एज़ कंपेयर टू द करंट टैक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग। प्रोसैसिंग इन्फॉर्मेशन दी काफ़ी फास्ट हुंदी है एंड इट इज़ हाईली सिक्योर, ठीक है जी। रिसर्च ये दसदी है कि अगर तुसी क्वांटम टैक्नोलॉजी नाल सिक्योर्ड कोड नूं अगर ब्रेक करन दी कोशिश भी करोगे तो यू विल टेक मोर दैन 3,00,000 ईयर्स 3,00,000 years to break a code that has been encrypted via quantum technology, ठीक है। दैट इज़ द लैवल ऑफ सिक्योरिटी दे प्रोवाइड। इस US, चाइना, इंडिया इन्ने पिछे तुसी कह सकते हो पड़े हुए ने, बिकॉज दिस विल अलाउ दैम टू हैव स्ट्रैटेजिक एज इन देयर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन देयर मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया लिए स्पेशली, बिकॉज इंडिया इज़ लुकिंग एट अ हॉस्टाइल नेबर दैट इज़ चाइना, राइट। सो दिस इज़ नॉट जस्ट द फर्स्ट इनिशिएटिव। इंडिया ने पहला भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिते हैं टू प्रमोट क्वांटम टेक्नोलॉजी, राइट। क्वेस्ट इज़ वन, एक्सक्यूज मी, एंड नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। इस तरीके नाल काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पहला भी इंडिया लै चुकी है। मेक अ नोट ऑफ दीज ऑल्सो एंड मैंशन दीज इन योर आंसर्स, राइट। दैट इज़ ऑल। तो अगर होर भी कुछ डिटेल्स आएंगियाँ तो आप डिटेल विच डिस्कस करांगे। फॉर नाउ मेक द नोट्स ऑन दिस, राइट। नैक्सट टॉपिक इज़ पॉपुलेशन। किस तरीके नाल इंडिया हैज़ बिन सरपासिंग चाइना, ठीक है। तो हुण UNFPA इंपॉर्टेंट UN दी एजेंसी है, राइट, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन। इस तरीके नाल यह जिहड़ी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पब्लिश करती है। रिपोर्ट याद रखो, रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है वो याद रखो, इससे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दिस रिपोर्ट हैज़ स्टेटेड दैट इंडिया की पॉपुलेशन जिहड़ी है 142.86 करोड़ हो जाएगी by June of this year, June 2023 तक, and China the population will be left at 142.57 crore. So India will eventually be the largest population वाला country in the entire world, राइट। पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन देखिए 8 बिलियन तो ज़्यादा हो जानी है जून के एंड तक, राइट। तो उस तो बाद ये रिपोर्ट इंडिया बारे क्या कह रही है कि इंडिया ने ऑल दो रिप्लेसमेंट लैवल फर्टिलिटी रेट जोड़ा है अचीव कर लिया है, बट स्टिल इंडिया की पॉपुलेशन जी है ग्रो करेगी कुछ टाइम तक। रिप्लेसमेंट लैवल फर्टिलिटी क्या हुंदा है? जिन्ने लोग नवे जम रहे ने उन्ने ही पॉपुलेशन विचों खत्म होंदे जा रहे हैं बाय डेथ, राइट। there is equal amounts of, you can say, the population that is being added by birth and the population that is going by death, ठीक है। that is what is replacement fertility rate। मतलब पॉपुलेशन जिहड़ी है वो आपदे आप नूं रिप्लेस कर रही है, ठीक है। इस तरीके नाल हुंदा है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। ये इंडिया विच है, बट स्टिल इंडिया की पॉपुलेशन जिहड़ी है वो ग्रो करती रहेगी, राइट। नाउ होर डाटा भी आया है डेमोग्राफिक्स ते। इंडिया की एज जिहड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन की एज है 26% पॉपुलेशन जिहड़ी है वो यूथ पॉपुलेशन, या तुसीं कह सकते हो कि अर्ली एज वाली पॉपुलेशन होएगी, राइट। 26%। चाइना विच ओनली 18% इज़ देयर। 7% एल्डरली पॉपुलेशन है करंटली, चाइना विच 14% है। हुण देखो ये धीरे धीरे जिहड़ा है ये ग्रो ही करेगी। इट इज़ बीइंग सेड दैट इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन विल डबल बाय 2030,
ठीक है, जिन्नी भी अज है उस तो डबल हो जाएगी 2030 तक, राइट। उस तो बाद इंडिया की पॉपूलेशन जी है स्टेट टू स्टेट वेरी भी करती है, हर स्टेट विच सेम सिचुएशन नहीं है। अगर तुसी सदਰਨ स्टेट्स देखो, स्पैशली स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, इत्थे देखो ज़्यादा लिटरेसी लैवल्स ने, तुसी कह सकते हो विमेन लिटरेसी, विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हायर है। तो इत्थे जिहड़ी है यूथ पॉपूलेशन घट है, रादर एजिंग पॉपूलेशन ज़्यादा है। एंड वेयर एज इन नदरन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, यंग पॉपूलेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इत्थे फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया नू स्टेट वाइज पॉलिसीज़ चाहिदियां होणगियां टू डील विद द नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट मैनर्स, ठीक है। इसीलिए आपने ये स्टेट वाइज डिवीजन भी यदी कर ली है, राइट। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो कि डिफरेंट स्टेट्स किवें पॉलिसीज़ बना सकती हैं, उस च तुसी ये मैप जिहड़ा है डिस्प्ले कर सकते हो, काफ़ी अच्छा तुहानू मार्क्स दिलाएगा, राइट। नैक्सट न्यूज़ आइटम 60 ईयर्स नागालैंड गैट्स इट्स फर्स्ट मैडिकल कॉलेज, ठीक है जी। हुण देखो 60 साल हो गए हैं नागालैंड नू स्टेट बने हुए, तो इहदा मैडिकल कॉलेज, फर्स्ट मैडिकल कॉलेज हैज़ कम दिस ईयर, राइट। हुण देखो पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है कि नागालैंड विच मैडिकल एजुकेशन नू बढ़ावा मिलेगा, यू कैन यूज़ इट इन पॉजिटिव लाइट ऑल्सो, बट इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट ऑल्सो इन द सेंस दैट वी टुक 60 years to reach to bring medical education to our northeastern state, ठीक है, टू ब्रिंग मैडिकल एजुकेशन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। तो तुसी इस फैक्ट नू यू कैन यूज़ इन योर एसेज, ठीक है, चाहे एजुकेशन ते ऐसे आवे कि किसमें एजुकेशन इंडिया विच परफॉर्म कर रही है, यू कैन गिव दिस एज एन एग्जाम्पल कि 60 साल लग गए सानू कॉलेज लियान विच, हैल्थ केयर किवें चल रही है, जो हैल्थ एजुकेशन ही नहीं होएगी केयर किवें होएगी, राइट। इस तरीके के एसेज विच तुसी आपदे माइंड के अकॉर्डिंग इस डेटा नू जिहड़ा प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो, right, depends on you how you use this fact, but this is a very important fact and can be used appropriately in answers, that is why it is being discussed here. Try to use in innovative way as far as possible, right. Next है जी जयशंकर साहब is on visit on 4 countries of Latin America, 4 countries केड़ी है, गुआना, पनामा, कोलंबिया, डोमिनिक रिपब्लिक, right। तो लेटिन अमेरिका केड़ा हुंदा है, साउथ अमेरिका नू ही लेटिन अमेरिका कहते हैं। तो ये 4 कंट्रीज़ दे नाल पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करन लई जिहड़े अपने फॉरेन मिनिस्टर ने वो पहुँचे ने, ठीक है जी। हुण इन्हां दी मैप बेस्ड लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनस आ सकते हैं। सो पनामा किते है, पनामा कैनल तुसीं सुनिया होगा, नॉर्थ अमेरिका ते साउथ अमेरिका नू यू नो ये तुसीं कह सकते हो लिंक कर दिया। दिस इज़ वॉट इज़ पनामा कैनल एंड एयर ही पनामा सिटी जिहड़ी है लोकेटेड है, राइट। दिस इज़ द लोकेशन। ये आसे पासे वाली सारी वाटर बॉडीज़ तुसी चेक करनी है, अटलांटिक ओशियन एंड दैन कैरेबियन सी कितने है, बेलीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो ये कोरल रीफ नाल रिलेटेड साइट है। तो इस तरीके नाल तुसी डिटेल्ड मैप इस एरिया का अज जाके घरे देखना है, राइट। जस्ट ओपन योर एटलसिस एंड सी ऑल द डिटेल्स अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है। गुआना कहाँ है, वेनेजुएला दे नाल ही लोकेटेड है तुहाडा गुआना, सेकेंड प्लेस जहाँ इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर इज़ विजिटिंग, राइट। अगेन तुसी ये सारी कंट्रीज़ देखनी है, ये अराउंड इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ वगैरह जज करनिया है, राइट। दैन डोमिनिक रिपब्लिक, कैरेबियन सीज़ दे विच एक आइलैंड है, दैट इज़ वॉट इज़ डोमिनिक रिपब्लिक। एंड फाइनली कोलंबिया, अगेन अ बिगर कंट्री इन साउथ अमेरिका यू कैन से, ठीक है जी। तो पनामा इत्थे होया, कोलंबिया इत्थे होया, गुआना एरिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक समवेयर हैर। सो दीज आर द 4 प्लेसिस दैट एक्सटर्नल मिनिस्टर इज़ विजिटिंग। तो तुसी ये सारे एरिया विच जिन्नियां भी डिटेल्स हैं उन्होंने प्लीज़ आपदे मैप ते लिख के रखो, मार्क करके रखो एंड दोबारा रिवाइज करते रहो, राइट। दैट इज़ अबाउट इट। एंड नाउ हीट वेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हाईली लाइकली है, ठीक है जी। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप करते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2030 तो अगर आप कहिए हीट वेव्स, देखो ग्लोबल वार्मिंग जी है बढ़ती जा रही है। वी ऑलवेज से ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, टैंपरेचर्स जोड़े वो वर्सन होंगे जाते हैं, गर्मी जी है वो काफ़ी बढ़ रही है, राइट। तो इसलिए हीट वेव भी क्या होंगी है, एक्सट्रीम
गर्मी that we are not able to bear, that human body cannot bear, that is what is heat wave। ਤਾਂ ਹੁਣ वर्ल्ड बैंक ਦੀ रिपोर्ट ने भी यही किया है कि 2030 तो इन्नी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जानी है एटमोसफेरिक टैंपरेचर दी, दैट 160 to 200 million people will be exposed to heat wave in India every year। हर साल इन्ने लोग इनू भुगतनगे, मैनी ऑफ दोज पीपल मे डाई, मैनी ऑफ द पीपल विल ऑल्सो लूज जॉब्स। ठीक है, क्योंकि गर्मी करके काम करना बहुत डिफिकल्ट होएगा, इंडस्ट्रीज़ जिहड़ियां बंद रहनगियां, एग्रीकल्चर जिहड़ा है बंद रहेगा, तो ओबवियसली जदों जिस टाइम ते वो बंद रहनगियां उस टाइम दी लेबर नूं भी जिहड़ी है जॉब्स नहीं मिलणगियां, इसे लिए जॉब लॉसिस भी काफ़ी विटनेस करने पैणगे। Right, so this is an important data that you can write down and use it whenever there is a question. You can start even with introduction, your introduction of the answer with these paragraph। ठीक है, now heat wave हुंदा क्या है, when देखो बहुत सारी conditions हैं, you can read that। जिहड़ी basic condition तुसी याद रखनी है heat wave दी, that is this, right। अगर temperature जिहड़ा है plain areas विच 40 डिग्री या उस तो ज़्यादा हो जावे, that is when हीट वेव कैन बी डिक्लेयर्ड। या अगर वेरीएशन देखनी होवे तो नॉर्मल टैंपरेचर तो अगर टैंपरेचर जिहड़ा है 4.5 डिग्रीज तो ज़्यादा वध गया है तो उसनूं हीट वेव जिहड़ा है प्लेन एरिया विच डिक्लेयर की जाती है बाय IMD, इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। राइट, सो यू कैन रीड इन अनदर एरियाज ऑल्सो, कोस्टल्स दे विच किदों किया जाता है, हिली एरियाज विच किवें किया जाता है, यू कैन रीड ऑल दैट। बेसिकली मार्च तो जून का जिहड़ा महीने ने ये सारे नाल ज़्यादा प्रोन हुंदे आ हीट वेव लई, राइट। एंड मोस्टली सेंट्रल इंडिया जिहड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा तुसी कह सकते हो, दिस इज़ द एरिया जिहड़ा कि ज़्यादा प्रोन रहिंदा है। नॉर्थ विच तो ओबवियसली यू नो कि बेटर टैंपरेचर्स फिर भी होंगे ने, बट दीज आर द एरियाज दैट आर वेरी मच प्रोन। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाली स्टेट्स ते बहुत ही ज़्यादा गर्मी प्लस ह्यूमिडिटी की कंडीशन जी है विटनेस करनी पैंदी है। ऑल्दो इन्ना एरियाज च भी होंगे ने, बट दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एरियाज। ठीक है, ऑल दी स्टेट्स आर इन सम वे वल्नरेबल टू हीट वेव्स। ठीक है, हीट वेव्स का काफ़ी इंपैक्ट होंदा है अपनी इकोनॉमी ते, अपनी सोसाइटी ते। इकोनॉमी ते एज आई टोल्ड यू जॉब लॉसिस कैन बी विटनेस, जिवें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने आपां नूं दस्सिया है, राइट। दैन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। देखो इन्नी गर्मी है तो किवें लेबर वर्क करूगी, ऑलमोस्ट 11 बजे तुसी देखो कि लेबर काम करना खत्म कर दिंदी है इन्ना महीनों विच, एंड 2-3 बजे तक दे कैनॉट वर्क। सो यू कैन से 11 to 3 PM the working hours they are gone to waste, although फिर इन्हों टाइम एडजस्टमेंट्स करनिया पैंदियां, दे स्टार्ट अर्ली, राइट, एंड दे वर्क इन द इवनिंग्स, बट ये है कि इस टाइम ते काफ़ी नॉन प्रोडक्टिविटी जिहड़ी है आ जाती है, राइट। और ते होर अनदर इंपैक्ट क्या है एग्रीकल्चर ते कि यील्ड्स भी काफ़ी घट रही है। इन्नी जद गर्मी बढ़ूगी, इन्नी ज़्यादा हीट होएगी, द क्रॉप्स विल नॉट बी एबल टू बियर दी समर दी हीट दैट इज़ देयर, सो देयर इज़ अ इंपैक्ट ऑन द यील्ड ऑल्सो। जिमें कि ICAR की रिपोर्ट आई है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इट सेज दैट these growing heat waves will impact the yields by 20%, reduction can be seen in the yields। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द डाटा ऑल्सो। ठीक है जी, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स होंगे, लोग इवन डाई ऑल्सो बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक डेथ्स तुसी सुनिया होंगियां, ह्यूमन मोर्टैलिटी इज़ वेरी हाई, एनिमल्स भी नहीं वेयर कर सकते, दे ऑल्सो माइट डाई, सो लाइफ स्टॉक का लॉस भी काफ़ी होएगा। फूड पॉइजनिंग जी बीमारियां इस टाइम ते काफ़ी होंदी है, पानी की घाट होंदी रहती है, बॉडी फंक्शनिंग ते बहुत इंपैक्ट होंदी है, राइट। नॉट जस्ट आवर स्टमक, आवर माइंड कैन ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी काफ़ी देखा जाता है बिकॉज ऑफ हाई लैवल्स ऑफ गर्मी, राइट। दिस इज़ ऑल साइंटिफिकली प्रूवन, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होंदा है हीट वेव्स का, इसे लिए हीट वेव्स नू कंबैट करने लिए गवर्नमेंट्स नू काफ़ी एफर्ट्स करने पैणगे। वॉट कैन बी द मेजर्स दैट दे कैन टेक, फर्स्ट मेजर इज़ सिटी लेवल हीट प्लान्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, इन्होंने सिटी लेवल ते हीट प्लान्स बनाए हुए है कि इन्होंने पता है कि मार्च टू जून जुलाई तक
possibility है heat waves दी. So they have already decided what will they do if heat wave is declared. ठीक है कि offices ਦੇ hours shift होंगे या इस टाइम ते work नहीं होगा, public transport इस टाइम ते apply नहीं किया जाएगा. इस तरीके की प्लानिंग ये पहले ही कर चुके हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू प्लान टू जनरेट अवेयरनेस अमंगस दी सिटी पॉपूलेशन कि हीट वेव नू किमें डील करना है. उस टाइम ते गर्मी के टाइम ते अंदर ही रहो, बाहर ज़्यादा ना जाओ. That is the first thing that each city of India can do. Then green ते blue spaces ज़्यादा create किते जान. Very important keyword green space मतलब trees वगैरह काफ़ी grow किते जान. Obviously trees are one of the cheapest way you can say you can safeguard yourself from direct heat. ठीक है, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हर सिटी विच ग्रीन स्पेस होनी चाहिए है. ब्लू स्पेस मतलब वाटर एरियाज भी होने चाहिए है. जितना ज़्यादा वाटर होएगा दैट विल हेल्प टू काम डाउन दी टेंपरेचर्स. राइट, उस तो बाद कम्यूनिटी वाटर पॉइंट्स होने चाहिए है. जगह जगह ते पानी पीन दी पॉइंट्स होने चाहिए है ताकि डिहाइड्रेशन करके लोग मरन ना. टाइमिंग्स चेंज होन स्कूल्स दी, ऑफिसेस दी. अर्ली जिमें हुण पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, तुसी देखिया ही होगा 7 वजे तो लैके 7:30 तो लैके 2 PM तक दे आर डिसाइडिंग कि मे तो दे विल ऑपरेट दी पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसेस. दिस इज़ गुड. मल्टीपल रीजनस है. वन रीजन कैन बी एक्सट्रीम हीट तो बचाना. ऑल्सो इंडिया का जोड़ा पंजाब का बिजली का खर्चा भी घटाना चाह रही है गवर्नमेंट, एंड हीट वेव्स तो भी बचा सकती है इस तरीके नाल समहाउ. राइट, दैन वो तो बाद ओडिशा एक केस स्टडी है जिहड़ी कि सारी अदर स्टेट्स नू फॉलो करनी चाहिए है. ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया विच काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रैस कर रही है, एंड हीट वेव्स नू मैनेज करने लई भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिते हैं. जिमें कि देखो ट्रांसपोर्टेशन के शेड्यूल, जिमें मैं तुहानूं दस्सिया पब्लिक बसिस वगैरह पीक आवर्स ऑफ हीट वेव अप्लाई ही नहीं करदियाँ. 11 तो 3 वजे तो तुसी ला लो कि कंप्लीट शटडाउन टाइप से कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशनस होंदियां ने. राइट, हॉस्पिटल्स च डेडिकेटेड बैड्स वार्ड्स रखे गए हैं ताकि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स नू इमीजीएटली केयर ते ट्रीटमेंट दिता जा सके. ड्रिंकिंग वाटर सारे किते अवेलेबल है. ORS टू प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ये पैकेट्स ईजीली अवेल किए जाते हैं. रेस्ट शेड्स बनाया गया वर्कर्स लिए. 11 तो 3 या हाई गर्मी के पीक टाइम ते दे कैन रेस्ट एट सेफर प्लेसिस. राइट, दिस इज़ हाउ ओडिशा इज़ ट्राइंग टू फाइट इट, एंड अदर स्टेट्स कैन एम्यूलेट. ठीक है जी, एम्यूलेट द सेम. अगेन इंग्लिश वर्ड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. राइट, दैट इज़ वॉट इज़ देयर फॉर टुडेज न्यूज़. बहुत ही लंबी डिस्कशन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ हाईली प्रोबेबल टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो डू फॉलो द डिस्कशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.